My name is Hirsho Pramanik, and if you're new to this channel, I am a full-time software engineer with a degree in computer science, and I make videos on lifestyle and technology for all of you so that you get to know what's going on in the industry and in consumer tech, and also the latest things which are happening. So today in this video we shall talk about my experience of applying for the position of user interface engineer at Apple. Some of the things that went wrong, or let's say some things which I could improve while attempting these kinds of interviews. So this video would be really ideal for you if you are planning to apply for software engineering positions at Apple. Now, I know that this video is kind of focused on the front end side, but we shall cover all the types of questions which you can prepare in a separate video later on. But in today's video, let's see what kind of questions you need to prepare to crack the Apple coding interview. So let's go ahead and find out. So talking about the first round of interview, before that, let me do one thing. So talking about how I applied there at Apple. So I went to the Apple Careers website on their official page. I used my Apple ID to sign up and filled the form and uploaded my resume. Pretty standard stuff. And I never thought that I would actually get a call back from their team. Fortunately so, within a day or two, I think I got a call from Apple, and that too, I think it was kind of 8:30 or 9, I think even 10 o'clock in the night, sorry. It was 10 p.m. at night, I got a call, I thought, okay, who's this? And I was surprised to know that someone from the recruitment team at Apple India contacted me. So I first thought that, okay, this is some joke or something else is going on here. But again, it was absolutely true. I was amazed that I got an opportunity to kind of be interviewed at Apple. So again, after our initial round of discussions, we kind of scheduled my first interview, right? So now let's move on and talk about what actually was asked to me in my first round of interviews. Okay, so the first round of interviews were quite more on the side where I was kind of thinking about. So before that also there were like total 5 rounds of interviews as the HR told me, but I think the first initial rounds were more based on your role. So the first round was taken by the hiring manager of this particular profile. So yeah, so I think the first round was taken by some database manager over there, and I think that would be the team I or any candidate who's applying to this current position would report to. So I was asked questions regarding how my interests are inclined towards UI, what do I know about technology, and how I think that Apple can actually solve these kind of problems. So they wanted to kind of know me, how I fare in the industry as a candidate or potential candidate who would be actually working for the team. So they asked pretty general questions. Now some of the questions which I kind of remember were, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले राउंड में हुआ क्या था। तो जो पहला राउंड होता है वो आपके हायरिंग मैनेजर के साथ यूजुअली होता है। तो इस राउंड में हमसे ये पूछा गया था कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या फैसिनेट करता है, आपको टेक्नोलॉजी से क्या क्या आउटपुट्स निकालने का मन करता है। मतलब वो जानना चाहते थे कि मैं कितना इंक्लाइंड हूँ इस पोजीशन को पैशनेटली ज्वाइन करने का और उनके जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने का। तो वो लोग मुझे जानना चाहते थे कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने एप्पल में क्यों अप्लाई किया, और इस प्रोफाइल
के दौरान आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपको किस किस टेक्नोलॉजी में या कंज्यूमर टेक में चीज़ें फैसिनेट करता है, यानी कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट देता है इस फील्ड में। तो उन्होंने वो सब पूछा और ये सब जवाब मैंने भी काफ़ी सारे दिए हैं कि देखिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं हर साल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस वगैरह एप्पल का जो होता है वो देखता हूँ। और जो एप्पल की लैंग्वेजेस होती हैं ऐप्स डेवलप करने का, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था। स्विफ्ट प्लेग्राउंड्स, उन सब चीज़ों पर मेरा इंटरेस्ट है। और मैंने कहा कि हाँ, जबकि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ तब भी मुझे फ्रंट एंड की तरह थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं वो थोड़ा सा मज़ा आता है करने में। वैसे ऐसा बोला मैंने, है ना। खैर वो फ्रंट एंड में सारे इंजीनियर्स बोलते हैं चीज़, है ना। क्योंकि देखिए और एक चीज़ होता है कि आप जैसे कोड करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, है ना, और आपको पता है उस आउटपुट से किसी का फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा फॉर्म बनाया, आपने कोई इनपुट बनाया, आपने कोई विजुअल एनिमेशन बनाया, है ना। वो सारी चीज़ें जो होता है यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट देता है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोला। एंड फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आप कौन से लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ करते हैं कोडिंग करने के लिए, आपने क्या क्या कर रखी हैं अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में, और उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इश्यूज आई हैं, क्या चैलेंजेस आपने सॉल्व किया है, और आज के डेट में आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं। तो then I answered all the questions, है ना, one by one. And this round usually lasted for just more than 30 minutes, though it was scheduled for 1 hour. So up till this round I was pretty comfortable and मेरे को लग रहा था कि चलो हम कोशिश कर सकते हैं इसको क्लियर करने का। तो बिफोर वी वेंट टू द नेक्स्ट राउंड, द HR टोल्ड मी, उन्होंने ये बताया मेरे को कि ऐसा है शीर्षो, यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 5 to 6 rounds of interviews, तो be prepared. So then I think I cleared the first round pretty easily, and then I moved to the second round. And at this point of time I was at least मतलब ऐसा था कि हाँ कोशिश कर सकते हैं, वो वाला एक होता है ना फेज, तो वो लग रहा था। तो सेकंड राउंड चालू हुआ। तो सेकंड राउंड वाज अ टेक्निकल राउंड। तो सेकंड राउंड में मेरे फील्ड के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनसे पूछा गया। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया, HTML, CSS, और किस तरह से हम लोग एफिशिएंटली एक पेज को बनाते हैं, और वेबसाइट स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूछा, और ये भी पूछा कि एक वेबसाइट का परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मैंने उनको दिखाया डेवलपर टूल, सेटिंग्स, परफॉर्मेंस, और नेटवर्क लेवल पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो सब हमने दिखाया। और ये स्क्रीन शेयर करके उनको मैंने समझा दिया किसी भी ब्राउजर से हम लोग करते हैं जो यूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसको कैसे मेजर किया जाता है ये सब हमने देखा। तो आप अगर नॉर्मल लेवल पे देखा जाए तो पेज इनसाइट्स होती हैं, आप जो आई थिंक गूगल मॉनिटर करता है इन चीज़ों को, और इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जैसे पेज का रैंकिंग, स्पीड, लोडिंग टाइम, नेटवर्क कॉल्स। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, और ये भी देखा कि HTML, CSS वगैरह क्या कैसे लोडिंग होती है। उन्होंने क्रिटिकल CSS के बारे में पूछा, और ये भी पूछा कि आप एक HTML पेज को अगर सर्वर साइड रेंडर कराना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और किस तरफ आपका रिक्वेस्ट जाता है, आता है, और किस तरह से इस चीज़ को हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एनवायरनमेंट से सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि Node.js में Express.js होता है, तो Express.js के साथ हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करके हम कर सकते हैं ये चीज़ें सॉल्व। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या इश्यूज आ सकती हैं नेटिवली, और अगर आप इसको एक वेब ब्राउजर में करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन पर हमने जो आंसर्स दिए हैं वो रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड था। तो रिएक्ट नेटिव इज ए फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मोबाइल डेवलपर्स who want to get the output of their app in both Android and iOS while writing the code only once in JavaScript. तो ये सब हमने बताया। अगर आपको रिएक्ट नेटिव के बारे में पता है, बेसिक चीज़ें, आपने अगर कोई सिंपल ऐप भी बनाया हो
तो आप आंसर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो बेसिकली जो सेकंड राउंड था वो ये टॉपिक्स जो हैं हम लोगों ने डिस्कस करा, और आई थिंक ये ठीक ठाक गया राउंड। सो अब हम बात करेंगे कि थर्ड राउंड जो होता है उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई थी। तो द थर्ड राउंड इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द टेक्निकल राउंड। तो दिस वाज टेकन बाय द इंजीनियरिंग मैनेजर. So the questions were quite diverse as well as quite deep in the field of front-end technologies and languages. तो हम अगर बात करें कि इस राउंड में क्या क्या चीज़ें पूछा गया था, ये डीएस एल्गो वाला राउंड था, और इसमें खासकर डेटा स्ट्रक्चर्स और इन डेप्थ यू नो स्पेसिफिकेशंस ऑफ एल्गोरिथम्स ये सब पूछा गया था। तो सबसे पहले पूछा गया बिगो नोटेशन क्या होता है, आप लोग कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं एल्गोरिथम का, वो सारी चीज़ें थी। उन्होंने मुझे कुछ कोड स्निपेट्स दिखाया, उन कोड स्निपेट्स में से मुझे ये बताना था क्या इसका कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। और फिर ये भी पूछा गया कि जब मैंने ये सब किया, ये बताया, इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को। तो बेसिकली ये थे कुछ नेस्टेड लूप्स वाले क्वेश्चन थे, कुछ डू वाइल वाले थे, कुछ फॉर लूप्स के अंदर इफ और एल्स कंडीशंस थे, और ये बेसिक लेवल पे कुछ एक लास्ट क्वेश्चन था रिकर्जन के ऊपर भी था, और उसमें पूछा गया क्या कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि एक यूजुअल रिकर्सिव एल्गोरिथम का, और हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब पूछा गया, एल्गोरिथम का एक बेसिक आइडिया उनको मिल गया कि अच्छा ये है। फिर आता था डीएस और एल्गो के क्वेश्चंस। तो मतलब खासकर जो हम लोग करते हैं डीएस में, मेरे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बाइनरी ट्री में एक बाइनरी ट्री दे दिया था, और मेरे को बोल दिया था कि इसमें अगर इसको हम इन्वर्ट करते हैं बाइनरी ट्री को, तो उस केस में अगर हमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर करना है इन्वर्ट करने के बाद, ये हमें बताने हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल पैटर्न। तो आई वाज गिवन एन इन्वर्टेड बाइनरी ट्री, and then I had to kind of say that what was the original tree, and that original tree में मुझे ये तीन ऑपरेशंस आउटपुट निकाल के दिखाना था उन लोगों को। तो ये तो ऐसा था कि मैंने कर दिया था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा समझने में लगा कि इन्वर्टेड किस सेंस में था और कौन से साइड पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने सब समझा दिया। एप्पल के इंटरव्यूअर्स वर रियली प्रोफेशनल एंड दे हेल्प मी आउट रिगार्डिंग दिस। तो अगर आपको बेसिक लेवल पे C++ में आपने करा है बाइनरी ट्रीज, है ना, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, आप कर लेंगे सॉल्व। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सब सीक्वेंस निकाल है ना, एक स्ट्रिंग के अंदर आपको उसका सबसे ज्यादा मतलब द मोस्ट फ्रीक्वेंट सब सीक्वेंस को यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा था, और इसमें क्या हुआ था कि मैंने कर तो दिया था, बट इसका जो कुछ टेस्ट केसेस हैं वो पास नहीं हुए मेरे, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा नेगेटिवली देखा गया कि अच्छा ये कर लेना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा घबरा गया था इंटरव्यू में, और थोड़ी देर चल रही थी, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया था, तो मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस वाला फीलिंग आया था। तो आई कुडंट सॉल्व ऑल दी टेस्ट केसेस, राइट, ऑल द टेस्ट केसेस डिडंट पास। एंड मेरे को क्या क्या करना पड़ा कि इस राउंड के बाद थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, और ऐसा हुआ कि एप्पल वाले सबसे बेस्ट इंजीनियर्स को हायर करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में ये राउंड मेरे से क्लियर नहीं हुआ था, और यही मेरा आखिरी राउंड हो गया था। उसके बाद मैंने पूछा HR से कि क्या स्टेटस है मेरे एप्लीकेशन का, आप अगर बता सकते तो अच्छा हुआ, और जो फीडबैक है तो उस पर मैं काम कर पाऊंगा आगे। मेरे पास रिस्पॉन्स ये आया था कि हम लोगों का जो फीडबैक होता है दैट इज कॉन्फिडेंशियल एंड वी कैन नॉट शेयर इट विद द कैंडिडेट्स, बट वी लेट यू नो, है ना, इफ देयर आर एनी फर्दर ओपनिंग्स। और उसके बाद क्या हुआ था, मैंने पूछा था तो यही जवाब मिला मुझे, और मैं समझ गया था कि दिस इज आई थिंक दिस इज इट। सो एनीवेज आई थिंक लास्ट 2 राउंड में से एक राउंड और टेक्निकल होता है, एक उसके बाद HR होता, बट मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। खैर, मैं आप लोगों को इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल है, फैंग कंपनी है तो इम्पॉसिबल है क्रैक करना।
अब मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं आपके साथ ताकि आपको पता लगे कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ एप्पल नहीं, अमेजोन, फेसबुक, गूगल और खासकर इतने सारे स्टार्टअप्स हैं आज के डेट में जो सेम फैंग लेवल वाइट बोर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। सो गाइज दैट वाज काइंड ऑफ ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोस, एक बार देखिएगा। और आपसे उम्मीद है कि एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी चैनल है जिसका नाम है द टेक्नो वर्ल्ड, आप लोग उसे भी एक बार देख सकते हैं। उसमें टेक रिव्यूज़ और लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस ज़्यादा मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और एंड आई विश to all of the candidates who are preparing for such interviews, best of luck, and thank you so much for watching this video. Till then, see you later. Thank you.